Hi, everyone. Welcome to another episode of the Marketist podcast. My name is Imran Nadir. I'm the founder of Marketist and the host of the podcast. Uh, I always try to invite people who add value, not just in my life, as well as in your life, as well as a viewer. And I always try to invite people with like successful agency owners and people with actually good work they are doing, right? And today's guest is one of the people I follow, and his name is Shabazz Fayaz. He's the founder and CEO of Escalify Agency. He's based in Karachi, actually. They have helped over like 200 of brands scale using performance marketing, contributing to over $200 million in revenue. Working with local and international brands to building a system focused on predictable, scalable growth. Shabazz is known for being deeply kind of ROI driven. In this episode, we'll break down agency growth, content, niches, AI, and what it really takes to build an agency in 2026. Shabazz, thank you so much for joining in. I welcome Thank you you so to much, TMP. Akim, for inviting me today and looking forward for a great discussion ahead. Yes, wonderful. I'm not gonna ask you कि आप क्या हैं, क्या करते हैं, because everybody should know. If they don't, I will just add your Hmm. profiles, LinkedIn, social media in the description, and they can follow you and ask questions related to you, For sure. right? And I totally respect you for all the things you are doing. And I No, actually thank follow you. you on Instagram a lot. Ads Qualify को मैं ज़्यादा follow करता हूँ. Hmm. उनका आपका जो है ना I see a lot of EGC content on your Instagram, right? On your agency page. So Hmm. मेरा पहला सवाल उसी से related है कि how important is content for an agency in 2026? Well, Imran, अगर मैं इस सवाल का जवाब दूं, first of all, a great question that how much content is really important in 2026 and moving forward, जो अभी भी currently trends चल रहे हैं. Well, मैंने जब when I started Ads Qualify, हम लोगों ने core focus was to provide performance marketing services to our clients. जब मैंने वो चीज़ स्टार्ट की तो ऑब्वियसली जब भी आप कोई एजेंसी स्टार्ट करते हैं आपका एक मेन मोटिव होता है, एक आपकी नीश सिलेक्टेड होती है, एक प्रोसेस आपका सिलेक्टेड होता है कि मैंने किन क्लाइंट्स को सर्व करना है और कैसे मैं सर्व कर रहा हूँ. लेकिन जब आप एजेंसी स्टार्ट करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ वो टाइम पीरियड बड़ा एक्साइटमेंट वाला टाइम पीरियड होता है. उसमें आपके जो इनिशियल क्लाइंट्स होते हैं वो भी क्लाइंट्स लेकर आ रहे होते हैं और जो आपके लोगों को पता चलता है जो जानने वाले हैं वो भी आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड होते हैं. वंस एक्साइटमेंट पीरियड गेट्स ओवर, फिर हमारा असल पीरियड स्टार्ट होता है. दैट इज अ मेन चैलेंज फॉर एवरी बिजनेस ओनर आउट देयर कि अब हम अपने बिजनेस को किस तरह लोगों तक पहुंचाएं और हम कैसे बताएं कि हम बेसिकली व्हाट वी डू बेसिकली. सो एड्स क्वालिफाई में my younger brother is the content lead in Nets Qualify. So he started in a very small age. Like because he's a Gen Z, so he's up to content every day. He follows trend. He looks on the competitors, other brands content also. So हम लोगों ने, मैं पर्सनली क्योंकि बहुत ज्यादा फोकस था परफॉर्मेंस मार्केटिंग वाली साइड पे और क्वालिटी फुलफिलमेंट वाली तरफ. लेकिन एक चीज हम लोगों ने, क्योंकि हम फॉलो कर रहे होते हैं इंटरनेशनल एजेंसीज को भी, हमने एक चीज देखी है कि कंटेंट इज द मेन फेस बेसिकली, जिसको आपने दिखा के अपनी ऑफर्स को लोगों तक मैसेज पहुंचाना है, बेसिकली व्हाट यू डू. तो कंटेंट एक ऐसी चीज है, चाहे वो ब्रांड हो, चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे वो कोई फ्रीलांसर भी हो. मैं हमें अक्सर मेरे पास जब फ्रीलांसर्स की अप्रोच आ रही होती है से हाउ शुड वी, वो मतलब क्या एक मैसेज जो आप अपने यंगर सेल्फ को देना चाहेंगे, तो मैं हमेशा कहता हूँ स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर कंटेंट. क्योंकि जब तक लोगों को नहीं पता कि आप कौन है तो लोग आपको कोई काम भी नहीं देंगे. और जब आप लोगों को पता होगा कि यार लेट्स सपोज इमरान, आई लुक इनटू इमरान स्पोर्ट पॉडकास्ट और मैंने बहुत मल्टीपल जब उनकी वीडियोस देखी तो मुझे इमरान के मैसेज से पहले पता था व्हाट इमरान बेसिकली डू. तो वो एक क्राइटेरिया, एक ट्रस्ट, एक क्रेडिबिलिटी वहां हमारी बिल्ड होना शुरू हो जाती है. एंड मूविंग फॉरवर्ड, जिस तरह हमारा एक सोच, हमारा कंज्यूमर बिहेवियर है, वी कंज्यूम अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन अ डेली बेसिस. तो अगर हम इतना कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं तो एक ब्रांड या कोई किसी बिजनेस को ये सोचना चाहिए कि उसी कंटेंट के थ्रू मैं अपने आप को प्रमोट कर सकता हूँ. पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर हमारी सोच क्या होती है कि यार पैसा लगाने से ही पैसा बनेगा, सो हमें स्पेंड करने हैं एड्स पे, इवेंट्स पे, इतने हैवी सेटअप पे. मैं इस चीज को नहीं मानता. यू कैन ग्रो ऑर्गेनिकली. अगर हम दुबई की एक एजेंसी है ट्राइफिट मीडिया, विच इज एन इंस्पिरेशन फॉर माई एजेंसी टू, हम ट्राइफिट को बड़ा फॉलो कर रहे होते हैं. ट्राइफिट ओनली ग्रोथ गॉट द ग्रोथ बाय द ऑर्गेनिक कंटेंट. जितना ऑर्गेनिक कंटेंट उन्होंने पब्लिश किया है, आई डोंट थिंक सो कि रिसेंट मैंने किसी भी एजेंसी को देखा हो इतना ज्यादा कंटेंट पब्लिश करते हुए. सो एवरीवन नोज ट्राइफिट टुडे. अक्सर लोगों ने ये कहा कि एड्स क्वालिफाई ट्राइज टू कॉपी ट्राइफिट. मैं इस चीज को बड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट समझता हूँ कि एटलीस्ट वी आर ट्राइंग टू कॉपी देम. क्योंकि कंटेंट एक ऐसी चीज है कि इज बेसिकली अ लर्निंग, टेस्टिंग, फेलियर वाली चीज.
यू गैरी वी की बड़ी मशहूर कोट है कि आप बस कंटेंट बनाओ, छोड़ दो स्क्रिप्ट, छोड़ दो सेटअप, छोड़ दो लाइटनिंग, जस्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग और फिर आपको पता चलेगा कि मैं इसको किस तरह इंप्रूव कर सकूं। एग्जैक्टली। आई टोटली अंडरस्टैंड, मुझे भी वो वाली वाइब आती है, वो जो ट्राइफिट से आती है। ठीक है, आई स्टार्टेड फॉलोइंग ट्राइफिट बिकॉज ऑफ अमानी। उसके बाद फिर मैं उसके फाउंडर को फॉलो करना शुरू हो गया, और आई स्टिल फॉलो देम। वो तो रोजाना खा रहा होता है, मुझे नहीं पता आप कब खाएंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही। इफ वी टॉक अबाउट मेहदी शफी फ्रॉम लास्ट 4 years बैक, हो सकता है कोई भी उसको नहीं जानता हो, लेकिन इन द लास्ट 4 years एवरीबडी नोज मेहदी शफी बिकॉज ही इज ऑलवेज ऑन आवर स्क्रीन। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपको एक ऑर्गेनिक ग्रोथ भी मिलती है, ट्रस्ट फैक्टर भी अच्छा मिलता है, आपकी क्रेडिबिलिटी भी इंप्रूव होती है। एग्जैक्टली। एज अ लॉट ऑफ पीपल, लाइक एक रिसर्च है कि हम तकरीबन ऑन एवरेज 4 आवर्स डेली, लाइक आउट ऑफ 24 आवर्स, हम 4 आवर्स डेली कंटेंट पे स्पेंड करते हैं। सो इफ यू आर कंज्यूमिंग, हम्म, लाइक अगर आपका यूजर इतना कंज्यूम कर रहा है तो यू शुड डेफिनेटली क्रिएट कंटेंट अराउंड इट। सो आई ऑब्वियसली। टोटली अंडरस्टैंड योर स्ट्रेटजी, एंड आल्सो मैं आपको भी देखता हूँ, आप भी बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपकी एजेंसी मोस्टली, जो आपकी लास्ट मीटिंग थी, व्हेन आई वाज वाचिंग योर रील, यू वर इन अ मीटिंग विद सम लोकल क्लाइंट, राइट? So what is your agency been like? Is your focus like on more on like US clients या फिर local clients, या फिर क्या आपकी किस तरीके से आप So काम करते Imran, हो? we started this agency because I used to. My background is from marketing. I did my bachelor's and master's in marketing from Mary University. So I started in corporate sector. So basically corporate sector के अंदर मुझे जो एक बड़ा मसला आता था वो था कि यार डिसीजन पावर ना वो बड़ी होल्ड करते हैं अक्सर। हम मतलब मैं टीम से भी बात कर रहा होता हूँ, सो उसमें होता ही है कि जो आपकी अपर मैनेजमेंट होती है वो डिसीजन पावर अक्सर रोक रही होती है, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल जितना उसके अंदर स्किल सेट है वो कभी भी सामने नहीं आ पाता। सो दैट्स व्हाई आई रिजाइंड फ्रॉम माय जॉब। I started freelancing for marketing, providing marketing services to different clients. And once I had almost 10 clients, I shifted this freelancing journey towards an agency model. Mhm. अब एजेंसी मॉडल के अंदर क्योंकि आई वाज वर्किंग विद लॉरियल, आई वाज वर्किंग विद नबीला जीरो मेकअप, आई वाज वर्किंग फॉर सीपीएल कैंपेन्स, सो मैं बहुत बड़े क्लाइंट्स के कैंपेन्स कर रहा था। उसके बाद मैंने ये फील किया कि फ्रीलांसिंग जर्नी भी जो है वो आपकी एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक होती है। अगर आप उसको एजेंसी मॉडल पे कन्वर्ट ना करें तो वो थोड़ा सा अनसर्टिनिटी वाला टाइम पीरियड होता है कि यू नेवर नो कि आज आपके पास 10 क्लाइंट्स हैं, कल आपके पास हो सकते हैं 5 हो। लेकिन व्हेन यू आर बिल्डिंग अ टीम, व्हेन यू आर बिल्डिंग सिस्टम्स, तो फिर मेरे ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। मैं एड्स क्वालिफाई को इसी तरह देखता हूँ कि इफ आई एम नॉट अवेलेबल इन एड्स क्वालिफाई टुडे, still the agency is running, the agency is fulfilling the client's requirements and growing with the time period. So we started providing services to local clients, लेकिन gradual time period पे हम लोगों ने मिक्स इसको लेके चलते हैं। हम लोग इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ भी काम कर रहे हैं, हम लोकल क्लाइंट्स के साथ भी काम कर रहे हैं। एंड फ्रॉम लास्ट 4-5 months वी आर प्रोड्यूसिंग कंटेंट फॉर मल्टीपल क्लाइंट्स। तो हमने कंटेंट क्रिएशन वाली सर्विस भी अपने साथ इंक्लूड कर दी है। एक ना मिथ है पाकिस्तान के अंदर कि लोकल क्लाइंट्स जो है ना पे नहीं करते, उनके मसले होते हैं, हम्म, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना एजेंसी ओनर्स या फिर फ्रीलांसर जो टॉप रेटेड हैं, वो इस चीज़ में प्राइड करते हैं कि यार हम लोकल क्लाइंट्स के साथ काम नहीं करते। हाउ डू यू सी सही इट? है। मुझे तो लगता है कि यार, मेरे हिसाब से अगर मुझसे पूछें तो इफ़ यू हैव गुड क्लाइंट, लाइक गुड, जिसका अच्छा बैकग्राउंड है, जिसका अच्छा ब्रांड हो, तो हम्म, लोकली तो वो भी अच्छा पे करते हैं एंड टाइमली पे करते हैं। तो हाउ डू यू सी दिस? बेसिकली दिस इज अ वेरी वेग स्टेटमेंट इन माय थिंकिंग, क्योंकि क्लाइंट आपका डिपेंड करता है। क्लाइंट इज अ बेसिक है क्लाइंट। अब क्लाइंट ऑन बोर्ड होने से पहले वो कभी भी ये नहीं कहता कि आई एम अ गुड क्लाइंट और आई एम अ बैड क्लाइंट। एग्जैक्टली। क्लाइंट इज द क्लाइंट। अब इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ भी जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे पीयर ग्रुप्स हैं, उनकी बहुत मल्टीपल एजेंसीज हैं जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स का काम करें, दे आर ऑलवेज इन अ वेरी हेक्टिक मोड कि यार हम नहीं फुलफिल कर पा रहे, हम नहीं समझा पा रहे। सेम गोज फॉर लोकल क्लाइंट्स ऑल्सो। मेरे कुछ जानने वाले लोकल क्लाइंट्स का काम कर रहे होते हैं, वो कहते हैं यार लोकल क्लाइंट्स अच्छे नहीं है। So it totally depends how you see your client. Basically, what are the expectations client is basically having from you and how you can fulfill them. We are working with clients, those are paying I think more than international clients. तो मैं ऐसे clients को बुरा क्यों बोलूंगा या मैं क्यों कहूंगा कि यार local clients अच्छे नहीं है? Depends on you and your skill set कि आप किस client को serve कर सकते हो। There are multiple agencies in Pakistan and in a very big names, those are working with local clients. East River, I used to do job in East River. East River is a very big agency in Karachi that is working with multiple multinational companies in Pakistan. Also goes, अगर हम लाहौर की बात करें, वहाँ एडेक्स एक नाम की एजेंसी है जो बहुत मल्टीपल लोकल क्लाइंट्स से काम कर रही है। They have almost a team, like we have a team of 30 individuals and they have a team like 50 to 100 individuals. So how they are basically managing their business? अगर लोकल क्लाइंट्स उनको पे ही नहीं कर रहे तो अपने 50 बंदों की सैलरी किस तरह दे रहे होंगे? तो अल्हम्दुलिल्लाह बाय द पैसेज ऑफ टाइम हम लोगों ने बहुत अच्छे क्लाइंटेज के साथ स्टार्ट किया। ऑब्वियसली व्हेन यू स्टार्ट एन एजेंसी, यू आर नॉट
यू आर नॉट श्योर बेसिकली कि आपको किस तरह के क्लाइंट्स आएंगे। लेकिन वंस यू स्टार्ट योर प्रोग्रेस, फिर आपको पता चलता है कि मुझे अपने क्लाइंट्स को भी ना कहीं फिल्टर आउट करने की जरूरत है। व्हेन वी स्टार्टेड, हम लोगों ने स्टार्ट में बिल्कुल वाइट लेबल के भी कुछ स्टोर्स को ऑनबोर्ड किया, लेकिन जब मैंने ये समझा कि यार ड्रॉप शिपिंग या व्हाइट लेबल इस तरह के जो ब्रांड्स हैं, इनकी फिजिबिलिटी बड़ी कम होती है। ऑब्वियसली इफ अ बिजनेस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन मी, तो मैं उससे कभी भी अच्छा चार्ज नहीं कर सकता हूँ, मेरी क्रेडिबिलिटी भी डिस्टर्ब है। अगर एक बंदा मुझे ही कह रहा है कि आप ही प्रोडक्ट निकालें, आप ही उसको हंट करें, आप ही उसको मार्केट करें, मुझे बिजनेस जनरेट करके दें। सो मैं हमेशा ऐसे बिजनेस ओनर्स से एक बात कहता हूँ कि अगर प्रोडक्ट मेरे पास होता तो मैं क्यों अपने स्टोर नहीं स्टार्ट कर लेता। तो एग्जैक्टली। आप कभी भी किसी को पैसा देने से पहले ये चीज जरूर सोचें। एंड लोकल क्लाइंट्स का मसला नहीं है, लोगों का मसला ये है कि लोग लोकल क्लाइंट्स को हमेशा देखते हैं कि छोटे क्लाइंट्स, लेट सपोज आपसे कोई 2 क्रिएटिव बनवा रहा है तो यार ये मेरा लोकल क्लाइंट है। वी आर मैनेजिंग मल्टीपल सर्विसेज फॉर मल्टीपल ब्रांड्स एंड दोस क्लाइंट्स आर पेइंग इन अ वेरी गुड अमाउंट। सो मैं क्यों कहूंगा कि मुझे लोकल क्लाइंट्स से काम करने में मजा नहीं आता। वी आर वर्किंग विद अ ग्रेट नेचर ऑफ क्लाइंट्स। बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड, आई टोटली अंडरस्टैंड। अच्छा, ये वाली बात बताएं कि व्हाई यू हैव लर्न यू डिड एमबीए एंड बीबीए फ्रॉम बेरिया यूनिवर्सिटी, देन यू डिड जॉब इन मल्टीपल हम्म big companies, like उसके बाद why did you choose the service industry? Why didn't you go with product industry? Like could be anything, physical products or digital products or anything. No, great question. And in fact, this question I get this question from time to time कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं why didn't you start your own e-commerce store? हाँ, Well, basically इसमें सिनेरियो ये है कि I am good in communication. I found myself good in communication. So मैं जब भी किसी से बात करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं उसको कन्विंस करने की एटलीस्ट थोड़ी सी एनर्जी अपने अंदर रखता हूँ। सो व्हेन आई टॉक टू पीपल दे गेट कन्विंस। तो मुझे एक सेल्स वाला पर्सपेक्टिव वहां से आया कि आई कैन क्लोज क्लाइंट्स। मैं जब उनसे बात कर रहा हूँ, वो मेरी बात समझ रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो वो मुझे एक सेल्स वाला क्राइटेरिया मिला कि यू आर गुड इन सेल्स ऑल्सो। बिकॉज यूनिवर्सिटी टाइम पीरियड के अंदर बेसिकली हमारी ग्रूमिंग इस तरह से हो रही होती है, वी आर ट्राइंग टू बिकम समथिंग। लेकिन जो असल चैलेंज है, जो असल वर्ल्ड है, वो तो हमने तब ही उसको फेस करना है जब हम प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर आएंगे, जब वो चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे। सो व्हेन आई स्टार्टेड, तो मुझे हमेशा से ये था कि यार मैंने लोगों को सर्विस प्रोवाइड करनी है, आई एम गुड इन सर्विस प्रोवाइडिंग। ई कॉमर्स स्टोर के मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं। मैं उसको अभी हो सकता है कि आज स्टार्ट नहीं करूं, मैं उसको 2 साल बाद स्टार्ट करूं। बिकॉज एस एन एजेंसी ओनर आई नो मल्टीपल इनसाइट्स। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग वो नहीं जानते। जब हम अगर लेट सपोज इफ आई हैव वर्कड विद 300 प्लस ब्रांड्स अप टिल नाउ, मुझे 300 प्लस ब्रांड्स की इनसाइट सारी पता है कि व्हाट टाइप ऑफ सफरिंग दे आर फेसिंग, व्हाट टाइप ऑफ चैलेंजेस दे आर फेसिंग। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टोर्स भी हैं जिनकी बहुत अच्छी सेल्स हैं, लेकिन उनके कैश फ्लो में इशू आ रहा होता है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी कम सेल्स है, लेकिन वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है। सो जो ई कॉमर्स का बेसिकली एक माइंडसेट है ना, वो ये है कि दिखने में आपको हमेशा एक चीज बहुत आसान लगती है। सी यार, माय फ्रेंड इज वर्किंग इन अ फुटवेयर ब्रांड, मैं भी फुटवेयर ब्रांड स्टार्ट कर लेता हूँ। लेकिन जो चैलेंजेस हैं वो आपके फ्रेंड ने हो सकता है आपको बताई नहीं हो, जो वो डेली बेसिस में फेस करते हैं, जो डेड स्टॉक के मसले हैं, जो कोरियर के मसले हैं, जो इन्वेस्टमेंट के इश्यूज हैं, वो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो रियलिटी चेक आपको देता है। सो व्हेन आई स्टार्टेड दिस एजेंसी, मुझे खुद ये था कि यार मैं सर्विस इंडस्ट्री के अंदर बेहतर हूँ। और ऑब्वियसली वो एक बड़ा ना, आप समझेंगे ऑटोमेशन वाला ट्रांजिशन होती है कि आपको पता नहीं होता है, लेकिन आप एक प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर जर्नी अपने स्टार्ट कर देते हैं। सो व्हेन आई स्टार्टेड विद 4 to 5 क्लाइंट्स, मुझे पता चल गया था कि यार इसमें मजा भी आ रहा है एंड दिस इज समथिंग आई कैन डू 24 आवर्स। मुझे बड़ा मजा आता है कि लोगों के साथ बात करना, अच्छे माइंडसेट के साथ लोगों को डिस्कस करना, उनको आइडियाज देना, अगर वो आइडियाज पे एग्जीक्यूट करें, देन उस बिजनेस को ग्रो होते हुए देखना। तो इस चीज ने, आई थिंक अल्लाह ताला ने भी इस चीज में बहुत साथ दिए एंड वी अल्हम्दुलिल्लाह एड्स क्वालिफाई हैज ग्रोन मल्टीपल ब्रांड्स अप टिल नाउ। Wonderful. You said that you have 30 members team, right? हम्म आपकी जो टीम है वो 30 एम्प्लॉइज आप कहते हो या टीम कहते हो, जो भी आप कहते हो, हम्म राइट? सो एक इशू आता है एजेंसीज के साथ ना, चाहे वो छोटी एजेंसीज हो या बड़ी एजेंसीज हो, रिटेंशन का, एम्प्लॉय रिटेंशन का। हम्म ये वो इशू है जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं बट फेस हर कोई करता है। सो हाउ डू यू टैकल दैट? आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती है उस रिटेंशन I'm के लिए? really sorry. Are you talking about client retention or team retention? टीम रिटेंशन, एम्प्लॉयज रिटेंशन। Team retention. यस। सही है। अच्छा, basically I got your question. So we have multiple team members with us who are there with us from the day one. We have like our head of digital, our meta ads lead, our website development lead. These are the people who are with me from my day one. So obviously उनको अभी तक retain करना एक चैलेंज से कम नहीं है, लेकिन दे नो व्हाट आई एम अप टू और मेरा विजन क्या है। होता क्या है कि बहुत सारी एजेंसीज के अंदर एक बहुत बड़ा इशू पता है क्या है कि वो बहुत ज्यादा इंस्टेंट हायरिंग्स की तरफ जा रहे होते हैं। कि लेट सपोज अगर आज मेरे साथ कोई प्रॉब्लम आई है, तो मैं कल एक बंदा हायर कर लूंगा, लेकिन मुझे पता चलेगा कि यार इस बंदे की अब मुझे नीड नहीं है, तो मैं उसको इंस्टेंट फायर भी कर दूंगा। इससे एक आपकी एजेंसी की खुद की इमेज भी डिस्टर्ब होती है। ऑब्वियसली
लाइक विद वर्ड ऑफ माउथ मार्केट में जा रहा होता है कि यार अगर मेरा एक दोस्त है वो किसी एजेंसी ज्वाइन करता है, वो अगले दिन ही उसको फायर कर देते हैं, सो वो अपने दोस्त को भी बताएगा कि यार इस एजेंसी में तुमने नहीं जाना, यहाँ एक प्रोफेशनल क्राइटेरिया नहीं है। सो इन एड्स क्वालिफाई व्हेन वी आर हायरिंग पीपल, हमें बड़ा क्लियर होता है कि इस इंडिविजुअल के साथ हमारा विजन है क्या। अब देखिए, कोई भी, मैं समझता हूँ कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होता जिसमें टीम रिटेंशन 100% होती है। इफ यू आर गुड, इफ यू आर गुड लीडर, आपको पता है कि मुझे किस बंदे को अपने साथ लेके चलना है, किस बंदे को मुझे अपनी टीम में एनर्जी वो फील नहीं हो रही है। इफ आई हैव अ टीम ऑफ लाइक 30 इंडिविजुअल्स, और अगर मुझे लगता है कि 25 इंडिविजुअल्स 100% दे ले, लेकिन 5 इंडिविजुअल्स उन 100% की एनर्जी भी खराब कर रहे हैं, सो मैं कहीं ना कहीं उसको लुकअप करूंगा कि यार इस तरह चीजें नहीं परफॉर्म कर सकती बेहतर तरीके से। तो जब भी हम कोई टीम मेंबर रखते हैं, हम उसके अपना विजन सबसे पहले मैं उसके साथ शेयर करता हूँ कि मुझे, मेरा विजन क्या है, अब 2026 के अंदर मुझे क्या अचीव करना है। अगर कोई भी टीम मेंबर आ रहा है, इफ शी और ही इज अलाइंड विद मी, ऑब्वियसली दे विल बी रिटेन्ड। और जहां तक बात है फ्रॉम लीडरशिप पर्सपेक्टिव और एन एजेंसी ओनर पर्सपेक्टिव, उसमें मेरी बहुत ज्यादा कोशिश होती है कि मैं उनके माइंडसेट के साथ सिंक होते हुए चलूं। बिकॉज आई वाज जस्ट मेकिंग अ रील राइट नाउ, उसमें मैं बात कर रहा था कि व्हाई जेंजी पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम द मिलेनियल्स और द ट्रेडिशनल माइंडसेट। इनको ये नहीं है कि यार ये आए, इन्होंने जॉब की, ये शाम तक बैठे और अपने घर गए बैक पैक करके। दे वांट एनवायरनमेंट, दे वांट ग्रोथ, दे वांट आइडिया डिस्कशन, दे वांट अ वेरी हेल्दी एनवायरनमेंट जहां वो खुद भी ग्रो हो सकें, अपने डिसीजन मेकिंग को फ्रंट पे रख सकें, और उनके ऊपर कोई इस तरह का मैनेजर नहीं हो बेसिकली जिनको वो बेसिकली ना दबा रहे हैं कि यार मेरी टीम बस आगे ना आ जाए, ये बंदा मेरा क्रेडिट ना ले जाए। ये वाला कल्चर हमने एड्स क्वालिफाई में रखा ही नहीं, तो जिसकी वजह से आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम रिटेन है और मेरे विजन के साथ अलाइंड है। वंडरफुल। बिफोर मूव बिफोर आई मूव टू एआई क्वेश्चन, एक सवाल हम्म। आपसे ये कि इन योर एजेंसी लाइक देयर आर सो मेनी मॉडल्स ऑफ क्लाइंट हंटिंग या फिर क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, राइट? हम्म। काफ़ी लोग कहते हैं कि आप गूगल मैप्स के ऊपर जाओ, क्लाइंट सर्च करो और उनको ईमेल करो, या लिंक्डइन के ऊपर आउटरीच करो, ठीक है? ये वो सारी चीज़ें जो कि अवेलेबल हैं, राइट? सही यूट्यूब के ऊपर आपने भी कई दफ़ा बात की होगी, बट जब वो एग्जीक्यूशन के ऊपर आता है तो काफ़ी लोग इसके अंदर लैग करते हैं। सो व्हाट इज़ योर लाइक, आपका क्या प्रोसीजर है कि आप किस तरीके से क्लाइंट ऑनबोर्ड करते हो या हंट करते हो? क्या आपने एक नीश स्पेसिफिक इंडस्ट्री को पकड़ा हुआ है उसके साथ चलते हो, या मल्टीपल कोई भी आ जाए वेलकम करते हो, या फिर आपकी कोई और स्ट्रेटजी है? अच्छा, इसमें ना सबसे पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आई थिंक ये बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनको हेल्प आउट भी करेगा कि उन्होंने अपना क्लाइंट किस तरह फाइंड आउट करना है और क्लाइंट हंटिंग करनी किस तरह है। वेल बेसिकली देखें, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मेरी एजेंसी या मेरा फ्रीलांस बिजनेस या मेरा कोई भी सर्विस बिजनेस, वो सर्विस ऑफर कर क्या रहा है, वो क्लियर आउट होना चाहिए। अगर इफ आई एम एन एजेंसी ओनर, आई एम ओपन टू प्रोवाइड सर्विसेज टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, तो मैंने कहीं ना मेरे माइंडसेट भी होता है, मैंने कोई ऐसी दुकान खोली हुई है जिसमें मैं सिर्फ काम आउटसोर्स कर रहा हूँ। कोई भी एजेंसी अगर वो सब कर सकती है तो मेरे ख्याल से वो कुछ भी नहीं कर सकती। ये एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है जो हमें अपने माइंड में रखनी है। वी आर क्लियर इन आवर सर्विसेज, वी प्रोवाइड परफॉर्मेंस मार्केटिंग सर्विसेज, वी प्रोवाइड ए टू जी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। लेकिन हमने अपने क्राइटेरिया इस तरह फाइंड आउट किया है कि हम ड्रॉप शिपिंग स्टोर के साथ काम नहीं करते, हम वाइट लेबल ब्रांड्स के साथ काम नहीं करते, वी ओनली वर्क विद प्राइवेट लेबल ब्रांड्स जो एक प्रॉपर ब्रांड वाली फील देता है। अब इसमें क्या है कि मैं क्लियर हूं, इफ समवन इज जस्ट आउटसोर्सिंग अ मॉडल जिसमें वो वाइट लेबल है, या जिसको खुद नहीं पता प्रोडक्ट क्या है, वो एक जगह से प्रोडक्ट लेके दूसरी जगह शिप कर रहे हैं और ऐसा मिडिल मैन उसने हमें रखा हुआ है, सो उसमें कभी भी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जज हो ही नहीं सकता। मैं उनसे कहूंगा आपको आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, वो कहेगा आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है। एक ऐसा डिस्कशन है जो कहीं ना कहीं क्लाइंट रिटेन भी नहीं करेगा और एजेंसी की इमेज भी डिस्टर्ब करेगा। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए व्हाट वी आर ऑफरिंग, हु वी आर ऑफरिंग एंड व्हाई वी आर ऑफरिंग। सो एड्स क्वालिफाई में हमारा ये विजन बड़ा क्लियर था। सेकंड चीज अब आती है क्लाइंट हंटिंग। वेल देखिए, जब आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, अपने आप को आपने स्पेसिफिक रखा हुआ है, आपने अपने प्रोसेस को स्पेसिफिक रखा हुआ है, आपने अपनी नीश को भी स्लाइटली स्पेसिफिक रखा हुआ है, आपको उसी तरीके के लोग फाइंड आउट करते रहते हैं। इफ आई टॉक अबाउट एड्स क्वालिफाई, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स, हमारे बहुत सारे नए क्लाइंट्स लेकर आते हैं, लेकिन एड्स क्वालिफाई विल नेवर बी डिपेंडेंट ऑन वर्ड ऑफ माउथ या रेफरल्स, क्योंकि रेफरल्स भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक हैं, और वो तब आपको मिलता है जब आप एक क्लाइंट के साथ बहुत ही कोई अच्छी क्वालिटी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, या ही और शी इज अल्ट्रा लेवल सेटिस्फाइड, तब वो किसी को रेफर करेंगे। लेकिन एजेंसी कैन नॉट रन ऑन अ रेफरल मोड। उसको बिजनेस जनरेट करना है ताकि वो अपनी प्रोजेक्शंस, अपने विजन, अपनी टीम को ग्रो कर सके। फॉर दिस मॉडल वी हैव अ प्रॉपर एक्विजिशन सिस्टम फॉर एजेंसी, जिसमें हम लोग थ्रू एड्स, थ्रू ईमेल्स, थ्रू जितने भी हमारे सेल्स चैनल्स हैं, उसको हम लोग प्रॉपर्ली लेके चल रहे होते हैं। देन वी हैव अ प्रॉपर सेल्स टीम जिसमें हमारे हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट हैं, हमारे बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं। हम किसी भी क्लाइंट से मीटिंग करने से पहले उसके जो रोड मैप होते हैं वो क्लियरली डिफाइन करते हैं। वी डू नॉट कमिट एनी टाइप ऑफ सेल्स
बट वी डिफाइंड द रोड मैप, व्हाट वी आर अप टू, क्या केपीआई हम लोग अचीव करेंगे। अच्छा, लोग का एक और बड़ा वो होता है कि हम सेल्स नहीं बता सकते। वेल देखिए, हम सेल्स नहीं बता सकते, लेकिन आप केपीआई तो डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप एक क्लाइंट से कहते हैं ना मैं सेल्स बताऊंगा ना मैं केपीआई डिसाइड करूंगा, यू आर हेडिंग समवेयर जिसका कोई रास्ता ही नहीं है या कोई पॉइंट ही नहीं है जहां हमने पहुंचना है। सो यू हैव टू डिसाइड केपीआईज, यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद योर क्लाइंट कि नेक्स्ट 3 मंथ्स मेरी क्या एक तरीके से प्रोग्रेस होगी, मैं आपको क्या डिलीवरेबल्स दे रहा हूँ, एंड आफ्टर 3 मंथ्स हम नेक्स्ट प्लान किस तरह बना रहे होंगे। Basically clients, there are clients who are waiting to work with you but they are not clear with the agency's mindset। अगर क्लैरिटी बिजनेस और एजेंसी के बीच में नहीं है तो क्लाइंट आके भी आपके पास नहीं रुकेगा। अगर एक एजेंसी क्लैरिटी किसी भी बिजनेस को प्रोवाइड करे तो आपके पास ऑर्गेनिकली भी क्लाइंट आ रहे होंगे, क्योंकि एवरीबडी नोज हु इज वर्किंग इन द मार्केट, हु इज वर्किंग बेटर इन द मार्केट। सो आजकल हर किसी को पता है, और जितना सोशल मीडिया कंटेंट का दौर है तो हर कोई जानता है कि कौन बंदा क्या कर रहा है। आई नो 100 एजेंसीज इन पाकिस्तान। इस तरह ब्रांड ओनर्स को भी पता होता है कौन कौन सी एजेंसीज काम कर रही हैं। और आजकल तो ब्रांड ओनर्स इतनी रैपिडली एजेंसी चेंज कर रहे होते हैं कि उनको वैसे ही पता होता है कि इस एजेंसी के मेरे साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, अब मैं दूसरी एजेंसी में जाऊंगा, मैं तीसरी एजेंसी में जाऊंगा। सो अक्सर क्लाइंट जब हमारे पास आते हैं तो वो बड़े पेन पॉइंट्स लेके आते हैं, या लास्ट एजेंसी में ये हुआ, इस एजेंसी में ये हुआ। आई डो नॉट टॉक अबाउट एनी एजेंसी, आई डू नॉट टॉक अबाउट एनी फाउंडर्स कि यार उस फाउंडर का मसला है, मैं उनकी बुराई करके एजेंसी ऑनबोर्ड करूं, वो कल को मेरे साथ भी यही करेगा। आई एम वेरी क्लियर कि जिसमें वो अपनी अपनी आपकी मर्जी थी, अपनी चॉइस थी, जिसकी वजह से आपने वो फेस किया। इफ यू विल बी वर्किंग विद एड्स कैलिफाई, ये हमारा रोड मैप है, ये डिफाइंड। इफ यू एग्री वी कैन वर्क, इफ यू डू नॉट एग्री वी कैन लेट इट गो। लेकिन हमें क्लाइंट बस इसलिए ऑनबोर्ड नहीं करना है कि हमें पैसे मिलने हैं। अगर हमें लगता है हम क्लाइंट को ग्रो कर सकते हैं, ओनली देन वुड दैट क्लाइंट। वंडरफुल। सो यू यूज ऑल सेल्स चैनल जितने भी हैं उनको यूज करके आप अपने लिए क्लाइंट जनरेट करते हो या फिर हंटिंग करते हो, राइट? ओके, टू अग्री विद यू, एक स्टेटमेंट है या फिर एक कोट है, यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड बट यू कैन नॉट डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। सो यू जस्ट हैव टू डिफाइन कि यार क्या चीज करनी है। आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, आप सब कुछ नहीं कर सकते। ये चीज बहुत मुश्किल से समझ में आई थी मुझे भी, व्हेन आई वाज लाइक ऑफरिंग एवरीबॉडी एवरीथिंग, ठीक है, देन आई जस्ट नीच डाउन, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। हम क्या, हमारे अंदर ये भी एक इशू होता है एज ए ह्यूमन बीइंग, हम ना जो चीजें अडॉप्ट कर लेते हैं उनको छोड़ने में बड़ा मसला होता है। जिसको जो एक प्रोसेस प्रोसेस होता है ना लर्न अनलर्न का, वो बहुत औखा होता है, बहुत मुश्किल होता है। और नहीं, ये काफी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, अनलर्निंग वाला कॉन्सेप्ट। मैं बड़ा इस पे पढ़ चुका हूँ, और लोग इस चीज को समझ नहीं पाते, क्लियर आउट नहीं हो पाता उनको कि ये कितनी बड़ी चीज है। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, एक और चीज़ है, वो ये कि देयर आर, आई एम सीइंग लाइक, शायद आप भी मुझे बताओ कि आपको भी ये फील हो रहा है कि जितने भी सर्विस इंडस्ट्री वाले थे, ठीक है, चाहे वो फ्रीलांसर्स हैं या फिर एजेंसी ओनर्स हैं जिनकी स्पेसिफिक एजेंसीज थी, दे आर शिफ्टिंग टू प्रोडक्ट्स, ठीक है, चाहे वो एजेंसीज में थे, दे आर नाउ शिफ्टिंग टू कंटेंट प्रोडक्ट्स लाइक डिजिटल प्रोडक्ट्स जिसे कहते हैं, कोर्सेज या फिर रोड मैप्स या फिर चेकलिस्ट एवरीथिंग। और काफ़ी लोग पिवट करके प्रोडक्ट की तरफ आ रहे हैं। Why do you see this change, and what do you think why this is happening? आई थिंक थोड़ा सा इसमें एक कहीं ना फियर वाला भी फैक्टर है कि लोगों को ऐसा लगता है कि यार सर्विस इंडस्ट्री का टाइम पीरियड बहुत कम है, या लेट सपोज इसका फ्यूचर इतना सिक्योर नहीं है। आज हमारे पास क्लाइंट्स हैं, कल अगर हमारे क्लाइंट्स चले जाते हैं तो हमने इतनी बड़ी टीम रखी हुई है। दिस इज अ वेरी गुड, आई थिंक नॉट अ वेरी बैड अप्रोच, दिस इज अ गुड अप्रोच। मैनी एजेंसीज इंक्लूडिंग अस, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट सम प्रोडक्ट्स फॉर डिफरेंट सेक्टर्स। हम डिजिटल मार्केटिंग में कुछ ऑटोमेशन के कुछ टूल्स पे भी काम कर रहे हैं। हमारे जो ई कॉमर्स क्लाइंट्स हैं उनको रिपोर्टिंग से लेके उनकी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं उसके लिए भी अभी हम लोग शॉपिफाई के कुछ एप्स बिल्डअप कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग आई थिंक विच एवरी बिजनेस ओनर शुड डू, कि उनको पता है कि अब नया ट्रेंड बेसिकली आ क्या रहा है। दे आर वेरी मल्टीपल टूल्स जो आज हमें मिलते हैं जो हमारा वर्कलोड इजी करते हैं। हमारी जो इस जनरेशन का मेन मकसद यही है, वी आर नॉट हेयर टू डू हार्ड वर्क, वी आर हेयर टू डू स्मार्ट वर्क। अगर हम स्मार्ट वर्क की तरफ जाएं तो हमें ये देखना है कि हम अपना टाइम कम से कम किस तरह कर सकते हैं। सो देर आर पीपल, अच्छा ये जो एक वो है कि बहुत सारे लोग सर्विस इंडस्ट्री से शिफ्ट कर रहे हैं। इसमें दो फैक्टर हो सकते हैं, आइदर उनका सर्विस इंडस्ट्री का जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा अनसर्टेन है कि उनको पता ही नहीं कि आज हमारा बिजनेस है कल हो सकता है यार ये अचानक से खत्म ना हो जाए। सो दे आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग जो उनको एक इनकम रेगुलर बेसिस में एक सेफ तरीके से उनके पास आती रहे। इफ दे आर ऑफरिंग प्रोडक्ट्स, उनको पता है कि यार मैं सो भी रहा हूँ तो मेरा प्रोडक्ट कोई खरीद रहा है तो उसका प्रॉफिट मुझे आ रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी सर्विस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो कर रहे हैं, उसी के अंदर वो इनोवेटिव आइडियाज लेकर आके कुछ नई चीजें डेवलप कर रहे हैं जिससे उनकी एजेंसी भी ग्रो करी। तो सर्विस इंडस्ट्री तो देखें कभी भी खत्म नहीं हो सकती, उसका मॉडल चेंज होगा, उसका क्राइटेरिया चेंज होगा, उसका वर्किंग स्टाइल चेंज हो सकता है, बट दे विल बी ऑलवेज बी सर्विस इंडस्ट्री। क्योंकि
अगर मुझे किसी से काम करवाना है, आज इंसान है, कल उसकी जगह एआई टूल होगा, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री वहीं रहेगी जहां वो थी। वंडरफुल। सो आप अपनी एजेंसी के अंदर एआई को किस तरीके से यूज कर रहे हैं? ये मैं अभी तो सबसे पहले जो भी हमारे पास न्यू हायरिंग होती है, मैं उससे सबसे पहला सवाल ये करता हूँ, व्हाट यू आर अप टू इनटू एआई वर्ल्ड, कि एआई की एटलीस्ट नॉलेज क्या है। अब देखें, डिपेंड करता है कि मैं एज एन एजेंसी ओनर कहने को मैं 10 टूल्स ऐसे बता दूं जो यार मैं यूज करता हूँ, मैं क्लाइंट के सामने बड़ा एक पॉजिटिव मैनर वाला बंदा बन जाऊं कि यार मैं ये टूल भी यूज करता हूँ, आई यूज सोरा, आई यूज जेमिनाई, आई यूज दिस दिस दिस। लेकिन डिपेंड करता है कि हमारी नीड क्या है एस एन बिजनेस। अगर मुझे लगता है एस एन एजेंसी हमारी नीड है कि हमारा ज्यादातर जो भी एआई का काम है वो ज्यादातर या तो कंटेंट क्रिएशन वाली साइड पे, जो हमारा रेगुलर बेसिस के एआई है, दैट इज बेसिकली ऑटो.ai व्हिच वी यूज फॉर मिनट्स ऑफ मीटिंग, वी हैव स्क्रीन रिकॉर्डिंग एआई, वी हैव समथिंग फॉर प्रोजेक्शंस। हमारी रिपोर्टिंग के लिए हम कुछ एआई टूल्स यूज करते हैं, हमारी प्रोजेक्शंस, हमारे केपीआईज बड़े इजीली डिफाइंड हो जाते हैं। एवरीबडी यूज चैट जीपीटी टुडे, मैं किसी को भी मना नहीं करता कि आप चैट जीपीटी यूज नहीं करें, बिकॉज if someone is not going with the current trend, वो कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट हो जाएगा। और अगर मैं ट्रेडिशनल माइंडसेट के साथ चलूंगा कि यार तुम्हारे पास अपनी सोचने की कोई सलाहियत नहीं है, तुम क्यों चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, तो मैं भी बैकफुट पे ही चल रहा हूँ। वी हैव टू इनेबल पीपल। मसला क्या है कि एआई मसला नहीं है, मसला ये है लोगों को एआई यूज नहीं करना आता, या उनको ये नहीं पता कि एआई के सही यूजेज क्या है, मैं इसको किस तरह यूटिलाइज कर सकता हूँ। बहुत वो लोग हैं जो जिनको एआई से वाकई डरना चाहिए कि एआई उनकी जॉब्स ले सकता है। लेकिन अगर एक बंदा वक्त के साथ साथ, जैसे एजेंसी के अंदर हम लास्ट 1 ईयर के अंदर जितना एआई को हमने इंटरनली इंट्रोड्यूस करवाया, हमें पता है कि वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन इस चीज को अगर ऐसे एजेंसी होना मैं रेजिस्ट करते रहता कि नहीं यार एआई आके हमारी जॉब्स ले जाएगा, हमने उसको नहीं लेकर आना, हमने उसी मेथड पे काम करना है, तो हम वक्त के साथ साथ एक तो स्लो भी होना शुरू हो जाएंगे, ऊपर से हमारी क्रेडिबिलिटी वैसी लूज होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज वी आर नॉट अप टू ट्रेंड्स। तो अगर आपने ट्रेंड के साथ कोप अप करना है, आपको एटलीस्ट नॉलेज हर टूल की होनी चाहिए। जरूरी नहीं है आपने हर टूल यूज करना है, हर टूल बाय करना है। लोग ये समझते हैं कि यार हर टूल पेड है, मुझे पैसे दे ही वो चीज यूज करनी है। आप सबसे पहले कोई चीज की नॉलेज, तो जब भी आप किसी क्लब की या किसी भी चीज की मेंबरशिप लेते हैं, आप सबसे पहले उसका ब्रोशर, उसकी चीज पढ़ते हैं कि ये बेसिकली ऑफर कर क्या रहा है, देन उसकी मेंबरशिप लेते हैं। Exactly. ये नहीं है कि आपने मेंबरशिप ले ली, अब आप अगले दिन सोच रहे हैं मैं इसको यूज कैसे करूंगा। बेसिकली सो आपको विजन क्लियर होना चाहिए कि व्हाई आई शुड यूज एआई, और एआई मेरे काम कितना ज्यादा इजी बना सकता है और किस तरह मेरी सर्विस इंडस्ट्री को बेहतर कर सकता है। अच्छा, इसी से रेलेवेंट एक क्वेश्चन है, वो ये कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ योर लाइक एजेंसी मॉडल विद एआई इवॉल्विंग? आपने डिफरेंट लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि you will be seeing a lot of one person billionaires in upcoming हम्म time, right? तो क्या ये एजेंसीज के लिए, मतलब आप इस चीज को कैसे देखते वेल देखें, मैं इस चीज को हमेशा इस तरह देखता हूँ कि एजेंसी मॉडल कभी भी जब तक खत्म नहीं हो सकता, जब तक ऑब्वियसली वी आर नॉट द ओनली कंट्री हु इज बिल्डिंग सम एजेंसी। हो? देयर आर मिलियंस ऑफ एजेंसीज करंटली रनिंग इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ। एजेंसीज मॉडल स्मार्टर हो जाएंगे लेकिन खत्म नहीं हो सकते। अब होता क्या है कि लेट्स सपोज, मुझे पता है कि यार आगे आने वाले वक्त में चीजें बहुत ऑटोमेशन पे जाने शुरू हो जाएंगी। अगर लेकिन लेट सपोज अगर मैं इसको इस पर्सपेक्टिव से देखूंगा, इफ आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम रनिंग अ ब्रांड राइट नाउ, मैं अकेले भी इतना ज्यादा मेरे पास टाइम पीरियड नहीं है कि मैं ऑटोमेशन के साथ भी वो चीजें कर सकूं, मैं मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकूं, मैं बिजनेस ग्रोथ की तरफ भी जा सकूं, और मैं माइक्रो मैनेजमेंट भी खुद कर रहा हूँ। वी नीड सम टाइप ऑफ टीम विद अस जो ये चीजों को यूज करना जानती है, जो एआई को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना जानती है, या वो बेसिकली स्मार्ट वर्क को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना जानती है। अब जैसे लेट सपोज हम ये देखें कि बहुत सारी कंपनीज में 100 लोग थे, जिसमें एक काम के लिए 3 लोग डेसिग्नेटेड थे। कि लेट सपोज एक अकाउंट का कोई बैंक है, तो उसके अकाउंट स्टेटमेंट को दूसरा बंदा टैली कर रहा है, फाइनेंशियल्स को दूसरा बंदा कर रहा है, प्रोजेक्शंस को तीसरा बंदा बना रहा है। अब इन तीनों का काम एक बंदे पे चला गया है कि एक ही बंदा मल्टीपल टूल्स से वो सारी चीजें फाउंड आउट करे और फाइनली रिपोर्ट बना के अपनी अपर मैनेजमेंट को सबमिट करवा दे। तो ये कुछ चीजें जो स्मार्टर वे प्ले करेंगी। अब लोगों का क्या है कि यार आपने एजेंसी बना ली, आप सिर्फ 30 पीपल के लोग हो। मैंने वो एजेंसीज देखी हैं कि जिसमें सिर्फ 5 लोग काम कर रहे हैं, एंड दोस एजेंसीज आर अर्निंग 5 मिलियन प्लस रेवेन्यू ऑन अ मंथली बेसिस। Doesn't depend how many people you need, it depends how fast you are in the thinking process, और आप चीजों को कितने स्मार्टली प्ले करते हुए लेके चल सकते हो, देन एजेंसी मॉडल्स विल बी देयर। क्योंकि एजेंसीज मॉडल मार्केटिंग देखेंगे ऐसी चीज है जो बहुत ब्रॉड टर्म है। अगर हम सिर्फ मार्केटिंग की एजेंसी की बात नहीं भी नहीं करें, हम कोई भी सर्विस इंडस्ट्री की बात करें, वो सर्विस इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी जिनको ट्रेंड्स का पता है, जिनको पैराडाइम शिफ्ट का पता है कि अगर एक पैराडाइम शिफ्ट आता है तो उसमें बहुत सारी चेंज होती हैं। आपका बिहेवियर चेंज होता है, आपके टूल्स चेंज होते हैं, आपका डिसीजन मेकिंग चेंज है। अब मैंने उसको अगर उसी करने मैं आपकी आवाज कट गई।
कि सर Can रोज you can you कि यार आज के ऑटोमेशन के थ्रू हो सकता है, तो फिर मैं वो ट्रेडिशनल मॉडल ऐसा ऐसा करते करते वो वैनिश होना शुरू हो जाएगा. wonderful. Acha, I totally got your point. That's wonderful way to explain. Acha, just one more thing. वो ये कि आई एम नॉट गोना आस्क यू कि कोई बेसिक सा फ्रीलांसर है वो एजेंसी मॉडल कैसे स्टार्ट करता है, ठीक है. देयर इज दिस गाय हु नोज दिस थिंग कि कैसे काम करती है. एंड व्हाट डू यू थिंक, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन कि यार एक प्रॉपर रोड मैप किस तरीके से एक एजेंसी इन 2026 आप बना सकते हो और ग्रो कर सकते हो. सो यू कैन जस्ट गिव मी प्रॉपर रोड मैप कि यार हाँ ये चीज़ें एट द स्टार्ट, ये इन बिटवीन और ये फ्यूचर, तो इन तीनों का ये पार्ट होना, मतलब प्री और ड्यूरिंग और पोस्ट, इस तरीके से कैन यू बेसिकली एक्सप्लेन. इसमें होता क्या था कि पहले एजेंसी जब हम लोगों ने भी स्टार्ट की थी अपनी एजेंसी, जब एजेंसी का मॉडल थोड़ा सा इस तरह था कि देयर वर मल्टीपल ग्रुप्स रनिंग इन पाकिस्तान, जिसमें हम ग्रुप कम्युनिटी जैसे एक्सट्रीम कॉमर्स हो गया या इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स थे जिसमें लोग अपनी वैल्यू या अपनी नॉलेज शेयर करते थे, वहां से उनको क्लाइंट्स ग्रैब होते थे, फिर वो करते करते एक एजेंसी मॉडल पे चले जाते थे. अब क्योंकि ये कम्युनिटीज भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा डाउनफॉल की तरफ जाना शुरू हो गए, पीपल आर नॉट हेयर टू लर्न, पीपल आर नॉट हेयर टू शेयर नॉलेज, they just want to grab clients, they just want to enter the world on a very next stage कि यार आज मैंने अगर कोई चीज सोची कल मैं उसका बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा. मैंने ये देखा है कि आई यूज टू लव मार्केटिंग, आई स्टिल लव मार्केटिंग, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस एजेंसी. लेकिन मैं बहुत सारे लोग आज ऐसे देख रहा हूँ जो बिजनेस पर्सपेक्टिव के लिए आज एजेंसी स्टार्ट कर रहे हैं. दिस इज सम टाइप ऑफ मनी मेकिंग मशीन कि यार आज हमने एजेंसी स्टार्ट की, हमने क्लाइंट्स को एड्स लगा के ऑफर दी, बस क्लाइंट्स ऑनबोर्ड किए, पैसे किए, टीम बिठाई और काम शुरू कर दिया. देखें इस मॉडल पे आपकी एजेंसी कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकती. Agency basically means you are trying to create something which you can think you can offer, but if you will have a very big team or a better team, you can offer more to the clients. वही वाली अप्रोच है कि मुझे पता था कि मैं 5 क्लाइंट को सर्व कर सकता हूँ, अगर मेरे पास टीम है तो मैं 50 क्लाइंट्स को भी सर्व कर सकता हूँ, मैं 100 क्लाइंट्स को भी सर्व कर सकता हूँ. सो अगर आज 2026 के अंदर एक बंदा एजेंसी स्टार्ट करना चाहता है, मैं 4 उसको पॉइंट्स देता हूँ, वो कोई भी बंदा एजेंसी स्टार्ट कर सकता है. यू शुड नो हाउ यू कैन डू योर पर्सनल ब्रांडिंग. अगर आप अपनी पर्सनल ब्रांड करना चाहते हैं, आपको हर बंदा दिखेगा, हर बंदा पहचानेगा. देयर आर मल्टीपल पीपल हु आस्क मी अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग, लेकिन डीपी पे उनकी कोई कोटेशन लिखी हुई होती है, ब्लैक डिस्प्ले पिक्चर होती है, इमरान खान लगा हुआ है, कोई सेलिब्रिटी लगा हुआ है. देखें ऑब्वियसली इफ यू आर ट्राइंग टू प्रोवाइड योर सर्विसेज, जब मैं आपको ही नहीं देखूंगा, आपका फेस ही नहीं देखूंगा, तो मैं बात किससे कर रहा हूँ? मैं तो ऐसा लगेगा मैं किसी वॉल से बात कर रहा हूँ. सो पर्सनल ब्रांडिंग should be your first criteria. You should know how you can sell yourself, and the people who know how to sell their self are truly amazing people. Second चीज आपके ये चीज आपने देखनी है, इफ आई कम अप विद 100 ब्रांड्स टुडे एंड आई हैव टू ऑफर समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, तो क्या ऐसी चीज है जो ये 100 ब्रांड्स नहीं कर रहे? मैं एक चीज उसमें से पिक करूंगा, दैट विल बी माय यूएसपी. मैं उस यूएसपी को रखते हुए अपना बिजनेस जनरेट करना शुरू करूंगा. लेट्स सपोज आज अगर एजेंसी मॉडल्स की हम बात करें, कोई भी एजेंसी मॉडल आपको वन स्टॉप सोल्यूशन तो कहती है कि मैं देती हूँ, लेकिन रोड मैप आपको डिफाइन नहीं करती. आज कोई भी एजेंसी ऐसी नहीं है कि जिसको मैं पर्सनली, हम लोग भी इस पे काम कर रहे हैं कि मैंने ब्रांड कम्स के एक ब्रांड उस एजेंसी से पूछता है मेरी पूरी ईयर की तुम मुझे रोड मैप दे दो, वो कहेगी हमें पता ही नहीं है कि आप ईयर में क्या क्या होगा आपके साथ. तो देयर आर ऑलवेज बी गैप दैट कैन बी फुलफिल्ड. और बहुत सारे ऐसे एरियाज है जिसपे ऐसा मार्केट है, अगर आपकी अप्रोच है या कोई भी सर्विस इंडस्ट्री, आपको पता है कि यार मैं इस चीज में बेहतर हूँ, ये मार्केट के अंदर गैप है, मैं इस चीज को पिक करूंगा, इस चीज से बिजनेस स्टार्ट करूंगा, ग्रेजुअली मैं अपना बिजनेस एक्सपेंड करते रहूंगा. सो यू हैव टू पिक अ नीश, यू हैव टू पिक सम टाइप ऑफ यूएसपी जिसको लेते हुए आप कोई चीज बिल्ड कर सकते हैं. थर्ड चीज, हाउ यू कैन डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम योर कंपेटिटर्स. लेट्स सपोज इफ आई टुडे स्टार्ट अनदर एजेंसी and my competitor is AdsCalify. Now AdsCalify have almost like 5,000 followers on Instagram, 10,000 followers on Facebook, like this type of followers. अब मैं अचानक इस एजेंसी से कैसे कम्पीट करूंगा? मैं सबसे पहले उसी अप्रोच में जाऊंगा, मैं एजेंसी को गो थ्रू करूंगा, देखूंगा क्या चीज ये लोग नहीं कर रहे. देन कम्स योर सोशल मीडिया फीड्स. ये आजकल मैं एजेंसीज का देखता हूँ कि वही क्राइटेरिया है कि यार ग्रिड पे हमें लेके चल रहे हैं, हमने बस पोस्टिंग कर दी, वी कैन जंप योर आरओएस विदाउट डिजिटल मार्केटिंग, विद डिजिटल मार्केटिंग. वो जो पिंटरेस्ट की पोस्ट होती है बस हमने वो बना दी. इस तरह लोग कभी भी नहीं करते. देयर आर मल्टीपल एजेंसीज जो मैंने रिसेंटली स्टार्ट होते हुए देखी, लेकिन मुझे बहुत पसंद इसलिए आई. These agencies are producing content on a very great basis. उनके अंदर ह्यूमन इंटरेक्टिव वाला कंटेंट है, उनके अंदर रॉ कंटेंट है जिसमें वो अपने प्रोसेस दिखा रहे हैं, जिसमें वो किसी मार्केट लीडर से बात कर रहे हैं, बिजनेस ओनर से बात कर रहे हैं. इफ आई एम अ बिजनेस और मैं देख रहा हूँ कि यार शहबाज इज टॉकिंग टू सम बिजनेस ओनर एंड टॉकिंग अबाउट सम टाइप ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द राइट गाय आई वांट इन माय ब्रांड. सो मैं उस एजेंसी को फॉरन अप्रोच करूंगा. लेकिन अब मैं एक एजेंसी को देख रहा हूँ जो बस कह रही है कि विद अस यू कैन ग्रो फ्रॉम हियर टू देयर एंड विदाउट अस यू विल बी देयर.
सो इस वाले मॉडल पे एवरीबडी इज अवेयर वॉट एवर पीपल आर वर्किंग इन द मार्केट, तो इस तरह के साथ कोई भी काम करना पसंद नहीं करेगा. एंड द लास्ट चीज इज द नॉलेज ऑफ द ट्रेंड्स. मैं बहुत सारे मार्केटर्स को भी देखता हूँ जिनको ट्रेंड्स की नॉलेज नहीं होती. वो सोशल मीडिया 5 घंटे भी यूज करते हैं, लेकिन वो कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं जो उनको अपने पर्सनल डोपामिन को रिलैक्स करने के लिए अच्छा लग रहा है. लेट्स सपोज आई एम वाचिंग मूवीज, आई एम वाचिंग फनी कंटेंट. मैं गुल प्लाजा की आग जलने वाला कंटेंट 2 घंटे देख रहा हूँ. अब वो मुझे कितना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वही वाली बात आ जाती है आपकी वाली कि अनलर्न वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे है ही नहीं. कि एक ही चीज रिपीटेड वे में मैं 4 दफा देख रहा हूँ, वो कंज्यूम कर रहा हूँ, मेरे माइंड में स्टिक कर गई, मेमोरी उसने प्लेस कर ली. अब मेरे माइंड के लिए वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं. तो मुझे वो चीजें देखनी है जो वाकई मेरे लिए बेनिफिशियल है. अगर मैं अपने इंस्टाग्राम का एक्सप्लोर खोलूं, यू विल ओनली फाइंड पर्सनल ब्रांडिंग, एजेंसी वीडियोस, ग्रोथ वीडियोस, एलेक्स हरमोजी, दिस टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसर्स. लेकिन अगर मैं एक नॉर्मल किसी भी टीम मेंबर का एक्सप्लोर उठा लूं, तो उसमें अरिजीत सिंह चीजें इस तरह की दिख रही होंगी. तो अगर आप जो कंज्यूम कर रहे हैं इवेंचुअली, वो एक बड़ी मशहूर कोट था जो मेरे फैमिली मेंबर्स या बड़े बुजुर्ग हमें बताते थे कि यू आर द एसेंस ऑफ द पर्सनैलिटी यू सिट इन. तो बेसिकली यू आर द एसेंस फॉर द ट्रेंड्स यू वॉच इन. कि आप जो ट्रेंड्स देख रहे हैं, आप उसके एसेंस हैं. वही चीज आप अपनी पर्सनैलिटी में डेवलप करते हुए देख रहे होंगे. सो एजेंसी इज नॉट समथिंग यू शुड थिंक लाइक अ बिजनेस कि यार ये आज एक ट्रेडिशनल शॉप की तरह मैंने खोल लिया, मैंने चीजें रख ली, लोग आएंगे मुझसे बाय करके जाएंगे. एजेंसी विल कन्वर्ट इनटू अ वेरी वेरी सेंसिटिव एरिया, जहां लोगों को अगर ट्रस्ट है और लोगों को ये क्लियर है कि यार ये एजेंसी जो बात कर रही है ये कमिट कर सकती है, ओनली दे कैन सर्वाइव इन दिस मार्केट. अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन अभी मैं पूछ रहा हूँ ना, वो मेरे लिए, ठीक है, शायद ऑडियंस भी इससे रिलेट कर पाए. वो ये कि मेरे माइंड में ये, या जो हम कर रहे हैं वो ये है कि हम एक स्पेसिफिक क्लाइंट या आईसीपी को टारगेट कर रहे हैं. ना हम ठीक है. उसको जो है ऐसी सर्विस पिच कर रहे हैं जैसे एसईओ हो गई या फिर डिज़ाइन हो गया. नहीं, हम एक स्पेसिफिक सर्विस है कि आपकी जो फाउंडेशन है और आपके जो गूगल एड्स हैं, गूगल एड्स से पहले आपकी फाउंडेशन बनती है, उसके अंदर वेबसाइट आ गई तो हम वो भी फिक्स कर लेंगे, कन्वर्जन आ गई तो वो भी फिक्स कर लेंगे, और उसके बाद आपकी वेबसाइट के अंदर कोई छोटे मोटे चेंजेस हो वो भी कर लेंगे. उसके बाद आपकी हम्म. गूगल एड्स रेडी हो जाएगी, फिर हम आपके लिए गूगल एड्स मैनेज करेंगे. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. आपको क्या लगता है कि यार ये वाली अप्रोच ठीक होती है, या फिर ऑल ओवर सब कुछ एक इंडस्ट्री की रियल से हम लोग अगर कॉन्ट्रैक्टर को टारगेट कर रहे हैं तो क्या हम उसे सारी सर्विसेज दे दें? एक ये अप्रोच है. दूसरा ये अप्रोच है कि नहीं, हम एक सोल्यूशन, एक एक प्रॉब्लम है, हम उसी का सोल्यूशन दे रहे हैं, उसके अंदर कहीं कहीं पर भी आ गया तो कौन सी वाली जो ऑफर है वो बेटर रहती है आपके हिसाब से? अच्छा, बेसिकली इसमें इमरान आई एग्री विथ यू, क्योंकि वो ये वाली बात है कि पीपल आर फोकसिंग ऑन बिकमिंग जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन. कि यार मैंने बस सब करना है और मैं किसी भी एक चीज में मास्टर नहीं करूंगा. आई रियली लाइक योर अप्रोच के आई हैव बीन फॉलोइंग यू हैव बीन मतलब ऑफरिंग गूगल एड्स सर्विसेज, और गूगल एड्स पे आप बड़े क्लियर हैं. लेकिन हमें ना इसमें ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि वी कैन स्टार्ट विद गूगल एड्स, लेकिन एक बिजनेस जो है वो गूगल एड्स से बियॉन्ड उसकी नीड्स है. ऑब्वियसली मैं अगर एक बिजनेस हूं, तो मैं अगर आप मेरे गूगल एड्स 100% सॉर्टेड है, मुझे हमेशा गैप दिखेगा मेटा एड्स पे, मुझे हमेशा गैप दिखेगा पर्सनल ब्रांडिंग पे, मुझे हमेशा गैप दिखेगा किसी भी ऐसी अप्रोच में जो आप ऑफर नहीं कर रहे. अब होता है क्या है कि आई एम वेरी कंफर्टेबल विद ब्रांड फॉर देयर सर्विसेज एंड आई एम very satisfied by the Google Ads service. Now, if Imran can come up with some type of upsell ideas, okay, now let's suppose we have started Google Ads, हमने conversions इसकी ले ली, right time we should hire someone for Meta Ads and we should hire someone for SEO also. ताकि अगर मेरे SEO के रिजल्ट्स बेहतर हो रहे हैं तो मेरे इवेंचुअली Google Ads के रिजल्ट्स भी बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि वो इंटरलिंक हैं दोनों सिस्टम्स ना. तो अब मैं ऐसा अगर मेरे इमरान के साथ उस ट्राइस क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड हुआ है और इमरान ही उनको एक अपसेल सोल्यूशन देते हैं, क्लाइंट मुझे नहीं लगता कभी भी मना करेगा. वो कहेगा बेटर सोल्यूशन है क्योंकि मैं आपके साथ लाइन हूं, अब आप इसको ऑफर करें. सो आपको कहीं ना कहीं या यू कैन ऐड इन योर एजेंसी टू, या यू कैन पार्टनर अप विद सम अदर एजेंसीज जो आपको लगता है कि जिनका क्रेडिबिलिटी का फैक्टर नहीं है, जो अच्छा काम कर रही है मार्केट के अंदर. आप उनके साथ एक अच्छी कोलैबोरेशन कर ली. यू टेल देम दे अदर देन गूगल एजेंसी क्लाइंट आता है, वो मैं आपके साथ पार्टनरशिप करके, और ये चीज क्लाइंट को भी आप अपडेट कर सकते हैं. बिकॉज इफ क्लाइंट इज सेटिस्फाइड, उसको नहीं फर्क पड़ता है कि यार इमरान ने मुझे किसी और को रेफर किया है. उसको तब फर्क पड़ेगा जब इमरान किसी गलत बंदे को रेफर कर देगा, वो सिर्फ तब उस पर शिकायत करेगा. लेकिन अगर आप बेटर सोल्यूशन की तरह उसको अपसेल कर सकते हैं, तो वही आपको अपने बिजनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट समझेगा. तो जब भी कोई नेक्स्ट डिसीजन उसको लेना होगा, वो सोचेगा नहीं यार इमरान से मैं पूछता हूँ, क्योंकि उसने पहले भी हमें एक बेटर सोल्यूशन दिया था, अब भी वो मुझे नेक्स्ट एक अच्छी अप्रोच दे सकता है. सो यू कैन लिमिट योर नीश. मैं बहुत सारी ऐसी एजेंसीज को जानता हूँ जो अमेरिका में एक स्पेसिफिक डेंटिस्ट नीश के साथ स्पेसिफिक स्ट्रीट पे
स्पेसिफिक लोकेशन पे काम कर रही है और वो बहुत अच्छा काम कर रही है, बिकॉज इफ आई एम अ क्लाइंट एंड आई वांट समवन टू फॉर माय नेक्स्ट बिजनेस, और मुझे पता है कि यार मेरी जो शॉप है वो डिफेंस के अंदर है। अब डिफेंस के अंदर एक ऐसा मार्केट एरिया है जो सिर्फ डिफेंस की शॉप्स के साथ काम करता है और वो डिफेंस की शॉप्स को ग्रो करता है, तो मुझे उस बंदे के साथ ही काम करना है। क्यों? क्योंकि ही नोज द मार्केट, ही नोज द मार्केट क्राइटेरिया, ही नोज द मार्केट पोटेंशियल। अगर मैं इस बंदे के साथ काम करूंगा तो इसको एग्जैक्ट डिटेल्स इनसाइट्स पता होंगी। लेकिन मैं अगर एक एजेंसी के साथ काम करूँ जो पूरे कराची में काम कर रही है, उसके साथ जो बिल्कुल एग्जैक्ट डिफेंस में काम करना चाहते हैं ना, वो थोड़ा सा हेजिटेट करेगा, उसको लगेगा कि यार इसको नॉलेज सब चीजों की है लेकिन एग्जैक्ट जो मुझे चीज चाहिए ना, वो चीज मुझे नहीं मिल पा रही। सो यू देयर आर मल्टीपल एजेंसीज जो बिल्कुल नीश स्पेसिफिक होकर काम कर रही है, लेकिन इफ यू आर नॉट गुड एट गोइंग ऑन अ वेरी नीश स्पेसिफिक एरिया, आप फिर मल्टीपल सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, लेकिन तब आपने करनी जब आपको पता है कि मैं इसको फुलफिल कर सकता हूँ। व्हेन वी स्टार्टेड परफॉर्मेंस मार्केटिंग सर्विसेज, हम लोगों ने उस वक्त वेबसाइट डेवलपमेंट, एसईओ या कंटेंट क्रिएशन की सर्विसेज ऑफर नहीं की। वी वांट अस टू बिकम मास्टर ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जहां हमारे पास केस स्टडीज हैं, हमारे पास पूरा एक जैसे प्रूफ है कि हमने किस ब्रांड को कहां तक स्केल किया। जब हमने वो प्रूफ मार्केट में डेवलप किया, वी स्टार्ट आवर ओन रिसर्च एंड R&D कि हम किस तरह डेवलप करें, हम किस तरह कंटेंट क्रिएशन की टीम बिल्डअप करें, हम किस तरह गूगल एड्स की टीम बिल्डअप करें। इस तरह करते करते फिर हम लोगों ने एक्सपेंड किया है। लेकिन अगर मैं पहले दिन से सोच लिया था कि एड्स क्वालिफाई इज देयर टू ऑफर एवरीथिंग, हम वेबसाइट बनवानी है, एड्स क्वालिफाई इज देयर, तो शुरू से मुझे लगता है वो क्लाइंटेज भी नहीं आ पाती, वो टीम भी नहीं बन पाती और वो क्वालिटी सर्विस भी प्रोवाइड नहीं हो पाती। Exactly. I'm moving towards very last few questions, right? फॉर श्योर। आपने कहा कि पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए या करनी चाहिए हर किसी को, राइट? जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि यार एक बंदा है तन्मय भट्ट, इफ यू नो हिम, वो हमेशा कहता है कि जो अगले सीईओज होंगे या फिर जो अगले सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स होंगे, वो वही होंगे जो कि कंटेंट क्रिएटर्स होंगे। अगर आप कंटेंट नहीं बिल्कुल। बनाते उस लेवल तक आप नहीं पहुंच सकते, ठीक है? हम्म। अच्छा, आपकी एजेंसी या आपकी पर्सनल ब्रांडिंग की जो है स्ट्रेटजी, कंटेंट स्ट्रेटजी, वो आप किस तरीके से लेकर चलते हैं? क्या आपके माइंड में सिर्फ ये है कि मैं वो वाला कंटेंट बनाऊंगा जो कि व्हाट इज गूगल एड्स, व्हाट इज एसईओ, या फिर जो सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग होगा, या फिर कुछ और? लाइक आपके माइंड में क्या है, व्हाट शुड बी द So कंटेंट basically, स्ट्रेटजी? when I started my own personal branding content, मुझे क्योंकि टीम इंटरनली भी है और वो पूरी कंटेंट क्रिएशन के आइडियाज मुझसे डिस्कस कर रही होती है, सो दे कम अप विद एन आइडिया कि हम वायरलिटी पे फोकस करते हैं। अब वायरलिटी जो है ना, उसमें फोकस करने के लिए आपको कभी कभी ना कुछ ऐसी पॉइंट्स डिस्कस करने होते हैं, कुछ इस तरह का कंटेंट बनाना होता है जो पर्सनल सेटिस्फाई इंसान नहीं हो रहा होता। लेट सपोज आई जस्ट डिलीटेड अ वीडियो विच गॉट ऑलमोस्ट 10,000 व्यूज इन फ्यू मिनट्स ऑफ अपलोडिंग, लेकिन मैं पर्सनली उस कंटेंट से सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि मुझे टीम ने कहा कि हम थोड़ा सा बताएं कि हमारे ऑफिस में कितना खर्चा हुआ है, एंड आई एम समवन जो इन चीजों पे कभी भी बात नहीं करता, कि आई एम नॉट समवन जो शो ऑफ वाली अप्रोच पे चले कि यार इतना बड़ा ऑफिस है, ये है, देयर आर मल्टीपल पीपल हु आर डूइंग बेटर देन मी। मेरे लिए वो इंस्पिरेशन है और मैं हमेशा उसी तरह अपने आप को देखता हूँ। लेकिन ये इस तरह का कंटेंट जब आप चाहें, लेकिन आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कंटेंट क्रिएशन में, कि यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द व्यूज, यू आर फोकसिंग ऑन एडिंग सम टाइप ऑफ वैल्यू फॉर योर ऑडियंस। अब मैं अगर मार्केटिंग का कंटेंट में बना रहा हूं, सो देयर आर वीडियोस व्हिच गेट ऑलमोस्ट 500 व्यूज, 300 व्यूज। मुझे पता है कि यार इतनी एजुकेशनल सिर्फ वही बंदा देखेगा जिसको सीखना है, लेकिन इसको कोई रीशेयर नहीं करेगा। जैसे ऑब्वियसली वी हैव अ हैबिट कि हम रीशेयर बहुत करते हैं वीडियोस। इंस्टाग्राम इज टोटली बेस्ड ऑन दैट एल्गोरिथम। इफ द वीडियो इज एडिंग वैल्यू एंड इट कैन बी रीशेयर्ड, इंस्टाग्राम उसको वायरल करेगा। लेकिन बहुत सारी वीडियोस ऐसी होती हैं जो वो रीशेयरेबल कंटेंट नहीं होता। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड हाउ आई स्केल्ड माय ब्रांड, वन ब्रांड टू वन लाख टू 1 CR, अब ये वो कंटेंट है जो या तो मार्केटर्स देखेंगे, या डिजिटल मार्केटर्स हो गए, फ्रीलांसर्स हो गए, बिजनेस ओनर्स हो गए, वो देखेंगे। लेकिन ये लोग हो सकता है अक्सर ना कमेंट्स कर रहे हो, ना लाइक कर रहे हो, ना शेयर कर रहे हो। लेकिन जब भी वो मेरे साथ आता है, मुझसे मीटिंग कर, कहते हैं मैं आपका कंटेंट देख रहा हूं, तो मैंने कहा आपने लाइक तो कमेंट तो किया नहीं, तो कह रहे नहीं हम कमेंट आपका कंटेंट देख जरूर हैं। सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर कंटेंट जर्नी, तीन अपने आप स्क्रिप्ट डजंट मैटर, क्योंकि अगर स्क्रिप्ट है ना, वो फिर एक्टिंग चली जाती है कि मैं पूरा एक प्लान करके कंटेंट बना रहा हूँ। योर कंटेंट शुड बी रॉ, यू शुड बी योर सेल्फ इन द कंटेंट, और आपको पता हो कि यू कैन क्रिएट दिस ऑन अ डेली बेसिस। अगर मैं पूरा सेटअप करके लाइटनिंग ला के स्क्रिप्ट लेके एक कंटेंट बना रहा हूँ, आई कैन गो फॉर 1 or 2 टाइप ऑफ कंटेंट। लेकिन अगर मुझे पता है कि यार आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो माय प्रोग्रेस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो माय प्रोसेस, व्हाट आई डू पर्सनली ऑन अ डेली बेसिस, मैं so content is very easy
अगर इजी रखना चाहिए, कंटेंट तब मुश्किल होता है जब हमें बहुत एक्सेल करना शुरू कर देते हैं कि यार आज मेरे पास एक अच्छा कैमरा आएगा तो मैं कंटेंट बनाऊंगा, या मेरे पास वो इरफान जो लाइट नहीं है तो मैं कंटेंट नहीं बना सकता, या मेरे पास वो मेरा लाइफ स्टाइल ये मैं इतना बाहर नहीं जाता, मैं कंटेंट नहीं बना सकता। दिस आर जस्ट एक्सक्यूजेस जो मैं पर्सनली खुद देता था, और मेरी कंटेंट टीम ने मुझसे ये चीज एनर्जी बाहर निकाल दी मेरे अंदर से ना, कि यू यू हैव टू क्रिएट कंटेंट। your mobile phone you should have one mic with you, start creating your content। आप गाड़ी में बैठे कंटेंट बनाएं, आप बाहर हैं आप कंटेंट बनाएं, लेकिन one thing you should focus कि either is this content is really adding value, या ये सिर्फ मैं बस अपलोड कर रहा हूँ। इस आपने बस चीजों को जज करना है, आपका साथ साथ खुद बेहतर होना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली। आई जस्ट वांट टू ऐड वन पॉइंट हियर कि हम लोग गलती ये करते हैं कि जब हम कंटेंट बनाते हैं तो हम अगले बंदे को जिसको फॉलो कर रहे होते हैं उसके 100th डे को हम अपने फर्स्ट डे के साथ कंपेयर करते हैं। व्हेन यू एग्जैक्टली। स्टॉप दैट, तो आपका कंटेंट वैसे ही जो है ना बेहतर होना ये क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन वो ये है कि इफ यू वुड लाइक इफ यू can you just tell me top 3 people you follow and you would like me to invite them on my podcast? Love you to host Mohammad Uzaifa, who's the owner of Tenfold Digital Media, and he's a lovely friend of mine, a great person with great knowledge। और उजैफा की मुझे पर्सनली ये बात बहुत अच्छी लगती है कि ही इज वेरी क्लियर विद हिज मैसेजेस। उसको कोई वायरलिटी का कोई फोकस नहीं है, ही डजंट वांट पीपल टू गेट फेम, ही इज जस्ट देयर टू टेल यू द ट्रुथ। और बहुत कम लोग हैं जो सच बोलने की ताकत रखते हैं, सो आई थिंक उजैफा शुड बी इनवाइटेड। एंड ये उजैफा का वीडियो देख रहा है वो समझ जाएगा कि मैं क्यों उसको कह रहा हूँ। Second person, I think there are multiple people on LinkedIn which we are not able to find on Facebook regularly, क्योंकि बहुत सारे ऐसी एजेंसीज हैं, उनके हेड ऑफ डिजिटल्स हैं, उनके चीफ टेक्निकल ऑफिसर्स हैं जिनको आप फेसबुक पे डेली बेसिस पे नहीं देखेंगे, या हो सकता है उनके सिर्फ 5-10 फ्रेंड्स हो फेसबुक पे, लेकिन दोज पीपल आर रियली एक्टिव ऑन लिंक्डइन। सो आई थिंक कुछ ऐसे लोगों को हमें बुलाना चाहिए जो प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर लास्ट 5-15-20 ईयर से काम कर रहे हैं। द वैल्यू दे कैन शेयर, आई कैन गारंटी वो कभी भी कोई नया बंदा, इनफैक्ट मी ऑल्सो, मैं वो वैल्यू कभी भी शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि जो चैलेंजेस उन लोगों ने देखे हैं फ्रॉम द कमिंग ऑफ इंटरनेट टू स्विचिंग टू चैट जीपीटी, द कंटेंट क्रिएशन पार्ट, उन्होंने सब चीजें अपनी जर्नी में आते हुए देखी हैं। सो जो चैलेंज जो एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, आई थिंक वो बहुत ज्यादा यूजफुल है के लिए। एंड द लास्ट पर्सन आई वुड लाइक टू सी इज, मतलब कोई भी हमारा कोई भी इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर होना चाहिए जिसके साथ लेट सपोज मैं पर्सनली भी चाहूंगा कि इमरान यू ग्रो योर दिस चैनल इन अ वेरी गुड वे, और अल्लाह ताला आपके और चैनल में अच्छी बरकत डाले, अच्छे लोगों को इनवाइट करने का मौका मिले, क्योंकि यू आर अ वेरी इन अ वेरी स्ट्रिक्ट माइंडसेट कि यार मुझे उन लोगों को लेकर आना है जो वाकई वैल्यू एडिशन में कोई ना कोई पार्ट प्ले कर सकें। आई थिंक इस तरह की पॉडकास्ट मैं पर्सनली बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, कि जिसमें हम लोग ना कि सिर्फ सक्सेस स्टोरीज की बात करें, मैं बेस्ट बन के आपके सामने बैठा हुआ हूँ कि यार आई हैव अचीव एवरीथिंग, इट डजंट साउंड लाइक दिस। हम लोग अभी भी स्ट्रगलिंग फेज में हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू बी द बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्फ ऑन अ डेली बेसिस। सो इंटरनेशनल लोगों के साथ भी हमें ये पता चलेगा कि पाकिस्तान से बाहर क्यों आ रहा है बेसिकली हमारा, क्योंकि एक मैं बड़ा समझता हूँ कि एक टिपिकल इंडिविजुअल वो होता है जो एक जगह पे स्टिक रह जाता है। अगर मैं लेट सपोज मैं पूरा पाकिस्तान घुमा हुआ हूँ और मैं सिर्फ कराची बंदे से बात करूं जो कराची से बाहर नहीं गया, तो उसके जहन में बहुत नेगेटिव एनर्जी होगी कि यार शहर आपका बुरा है, आपको यहाँ खाने पीने को नहीं मिलता, आपकी लाइफ बर्बाद है। लेकिन जब लोग लाहौर जाते हैं, लोग पेशावर जाते हैं, लोग कोयटा जाते हैं, दे आर वेरी डिफरेंट पीपल। गिलगित के आज आप लोगों से मिले, दे हैव अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट वे ऑफ टॉकिंग, डिफरेंट वे ऑफ कंज्यूमिंग योर नॉलेज। जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलते हैं ना, आपका माइंडसेट उतना ब्रॉड होता है, आप उतना ज्यादा इंटेलेक्चुअल आपका बेहतर होना शुरू होता है। तो अपने आप को लिमिट नहीं करें, इंटरेक्ट करें, नेटवर्किंग करें, और ऐसे लोगों को इनवाइट करने की कोशिश करें जो वाकई वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सीख के कोई ना कोई, क्योंकि सीखने वाला फैक्टर वक्त के साथ साथ बहुत कम हो गया है। बस एक मैसेज है, जैसे हमारी एक्सट्रीम कॉमर्स की कम्युनिटी थी, दैट यूज्ड टू बी अ जेम ऑफ अ कम्युनिटी, कि मैंने पर्सनली वहां से स्टार्ट किया था, तो वहां कोई चीज सीखने के लिए कोई चीज ज्यादा 10 लोग आज इसको जवाब देते थे, लेकिन आज लोग बस जस्ट ट्राइंग टू गेट बिजनेस, लोग फेक हो गई स्टोरीज या स्कैम करने की कोशिश करें, जिसकी वजह से पूरी कम्युनिटी का डाउनफॉल आ गया। आई थिंक पाकिस्तान शुड हैव दीज टाइप ऑफ कम्युनिटीज, दीज टाइप ऑफ पीपल जो वाकई सिखाने पे और सीखने पे मोटिवेट करें लोगों को, ना कि जस्ट आपने आज एक बिजनेस देखा, कल आपने उसको स्टार्ट कर दिया। इस तरह हमने भी स्टार्ट नहीं किया था, हमने सीखा है, हमने फेलियर्स देखे हैं, तब जाके आज हम एक जगह पे बैठे हुए। लेकिन अगर मैं ये अप्रोच आज रखूं कि यार मैं कल एक बंदे को अचानक फेसबुक पे पोस्ट कर देता हूँ, आई एम ऑफरिंग दिस सर्विसेज, इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज कॉन्टेक्ट मी, नोबडी विल एवर कॉन्टेक्ट यू।
सो आपको सबसे पहले अपनी लर्निंग फैक्टर रखना है, देन मार्केट में क्रेडिबिलिटी आपने इंप्रूव करनी है, देन आप देखेंगे आप खुद वक्त के साथ साथ ग्रो हो रहे होंगे. इफ यू आर गुड एट समथिंग, आपको कोई नहीं रोक सकता ग्रो होने के लिए. ओके, वन लास्ट रिक्वेस्ट एक्चुअली, वो ये कि आप अपने बिजनेस को जस्ट डिफाइन कर दें लाइक फ्यू सेकंड्स, ताकि इफ एनीबडी इज वाचिंग एंड ही इज योर एंड यूजर या एंड कस्टमर, वो आपको देख रहा है तो आपको रीच आउट करना है. Sure. So basically, I am a founder and CEO of a performance marketing agency based in Karachi, and we have helped almost 300 plus e-commerce brands to scale their brands, including Jockey, Hub Leather, Shark Fabrics, Dynasty Fabrics, L'Oreal, Zero Makeup, Habib Bang, and multiple brands. And basically, we started this agency from performance marketing. We create ads on multi-channel, and we try to scale those channels. Along with that, we provide services like content creation, UGC content, Reels, DVCs. Along with this, we are also working in the website development space. We are working in the SEO space, and we are also trying to produce some great products for Shopify stores. So this is what we do. And if you are an e-commerce brand or any type of business who want to grow their marketing vision or their audience, so just try to contact us, and we'll show you the exact roadmap. Wonderful. Thank you so much, Shabazz, for joining in, for giving us time. Hopefully, if this will grow, inshallah, I will invite Madi as well. He's my Inshallah, mentor. for sure. I like him as well. Likewise. Uh, Thank thank you you so so much, much. Imran, for contacting me and welcoming me to this podcast. And I think a very great session with a great discussion. Your questions were absolutely amazing and to the point exactly कि जिससे अगर लर्निंग वाला एक बंदा होगा वो इस पॉडकास्ट से भी बहुत कुछ सीख के निकल सकता है, लेकिन जिसको लर्निंग नहीं करनी वो स्क्रॉल ही करेगा हमेशा की तरह. वो तो कुछ भी देख ले तो देखता ही रहेगा. Okay, everyone, सही है. thank you so much. We will end here. Thank you so much. I will share all the links, social media of Shabazz in the description. You can just go through it and ask him whatever you want. Hopefully, he will reply. वरना हम रिक्वेस्ट करेंगे कि he will reply. Thank you, Shabazz. Hopefully, we will Thank you meet so much. in person. Hopefully, whenever I visit to Karachi or For sure, whenever for you sure. visit Islamabad, you're most welcome. Always welcome in Karachi. We would love to host you, and inshallah मैं इस्लामाबाद आऊंगा तो जरूर आपसे मुलाकात करूंगा. जरूर. Thank you so much. I'll be stopping. Thank you so much for your time once again, and thank you so much everyone. Bye bye. Bye bye. Have a good day. Good day. Thank you.